ہر میں زباں تمہارے لیے، بدر میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ چونکہ اس سلسلے میں نبی رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، اس لیے کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی کر لی جائے کہ جب جب اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، ادب و شوق کے ساتھ محبت و عقیدت کے جذبات کو دل میں لیے پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی اس طرح کے نظارے دیکھے ہوں، جب کسی سے کوئی گفتگو وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے ایک بالکل بدیہی سی بات، یعنی بدیہی مطلب بالکل واضح سی بات رکھی جاتی ہے، سامنے والا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسے بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بعض اوقات مثالیں دی جاتی ہیں، بعض اوقات دلائل دیے جاتے ہیں، بات بالکل واضح سی ہوتی ہے، اس طرح کی واضح گفتگو، اس طرح کی واضح بات کہ اگر یہ کہا جائے کہ بچے کے سامنے بھی بیان کی جائے نا تو وہ بھی شاید سمجھ جائے، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود بھی ماننے کی طرف نہیں آتے، تسلیم کرنے کی طرف نہیں آتے، سمجھ نہیں آتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں جناب عقل نہیں مانتی۔
بعض तबीयतें इस तरह की होती हैं कि जिन्होंने अपना जहन ही ये बनाया होता है कि मैंने समझना ही नहीं, मैंने मानना ही नहीं, तो ऐसों का कोई इलाज नहीं। हकीकत यही है कि ऐसों को आप लाख दलीलें दें, लाख मिसालें दें, लाख उनके सामने बैठकर कोशिश करें, और मुहावरा जिस तरह का इस्तेमाल किया जाता ना, भैंस के आगे बीन बजाना, तो ऐसी ही कैफियत होती है कि वो बिल्कुल खुली बात भी उनकी समझ में नहीं आती। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, आज जो वाक़या आपके सामने अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा, इसमें भी कुछ इसी तरह की कहानी है और कुछ इसी तरह का माजरा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नबुव्वत का रोशन बयान, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बिअसत के बारे में बिल्कुल वाज़े वाज़े चीज़ें, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मुझे ये चीज़ तस्लीम नहीं है। बल्कि यहाँ तक कता नज़र इस वाक़े के, यहाँ तक भी हुआ कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की बारगाह में ये बात अर्ज की गई, मेरे मौला ये नबी जो लेकर आए, अगर ये हक है आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे, ये नबी जो लेकर आए अगर ये हक है आसमान से हम पर पत्थर बरसा दे, इससे भी सख्त अजाब देना चाहता है दे ले, हम मानने की तरफ नहीं आएंगे। ऐसा ऐसा भी हुआ, हक है, वाज़े बात है, बिल्कुल हकीकत है। और जिस तरह कहा जाता ना, अज़हर मिनश शम्स, अज़हर मिनश शम्स का मतलब है सूरज से भी कहीं ज्यादा वाज़े। अब सूरज बिल्कुल पूरी आबोताब के साथ चमक दमक रहा है। इस सूरज के बारे में अगर किसी को बताना पड़े, समझाना पड़े कि जनाब ये जो सूरज है ना, इसकी चमक देख रहे हो, इसकी रोशनी, इसकी ताबानी तुम्हारे सामने है, इसके जलवे, इसके नज़ारे तुम्हारे सामने है, इसकी रोशनी आंखों को खीरा कर रही है, यहां तक कि इसकी तरफ देखना ताकत इंसानी से बाहर है। सामने वाला इसका अगर इनकार कर दे, आप बताइए आप उसको कैसे मुतमईन करेंगे, आप उसको कैसे समझाएंगे। आइए नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक दौर का ये एक अजीबो गरीब जो वाक़या हुआ वो सुनने की सआदत हासिल करते हैं। जनाब अबू नुआइम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मोहम्मद बिन काब कुरज़ी से इस बात को रवायत किया। मेरे मदनी चैनल के कई नाजरीन के इल्म में ये चीज़ होगी कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो उस वक्त हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कई सलातीन के नाम, यानी कई बादशाहों के नाम खत लिखे थे। इनमें से एक खत रूम के बादशाह कैसर, उसके नाम लिखा गया। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये मुबारक खत हजरत सैयदना दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप लेकर गए। आपने ये मकतूबे गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक खत कैसरे रूम को पहुंचाया। जब ये मकतूबे गिरामी वहां पहुंचाया गया, कैसर के भाई ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुबारक खत अपने हाथ में लिया और अपने भाई जो कि बादशाह है रूम का, उसको सुनाने लगा। मकतूब का अंदाज ये था, खत का अंदाज ये था कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इब्तिदा में अपना नाम लिखा, मिन मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये खत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से है जो अल्लाह के रसूल है। और ये किसको लिखा जा रहा है? कैसर को, जो कि रूम का साहिब है, साहिब रूम है। जब उसने ये कलिमात पढ़े ना, मुश्ताइल हो गया, गुस्से में आ गया, आपे से बाहर होने लगा और अपने भाई कैसर से कहता है, ये खत की इब्तिदा का अंदाज तुमने देखा है?
कैसा अजीब अंदाज है कि अपना नाम पहले लिखा है, तुम्हारा नाम बाद में लिखा है। इतनी सी बात पर अभी खत का मजमून क्या है, तहरीर क्या है, मुंदरजात क्या है, उसमें लिखा हुआ क्या है, वो सारी बात की बात बिल्कुल इब्तिदा ही से उसने वो एक बात को लिया और उस बात पे हंगामा शुरू करने लगा। देखो, अपना नाम पहले लिखा, तुम्हारा नाम बाद में लिखा है, और तुम्हारे नाम के साथ रूम का बादशाह नहीं लिखा, साहिब रूम लिखा है। साहिब रूम का माना रूम वाला भी है, साहिब रूम का माना रूम वाला मतलब रूम का रहने वाला, और साहिब रूम का माना रूम का साथी, रूमियों का साथी, रूमियों का मसाहिब, ये भी है। उसने इन दो बातों को लिया और आगे खत पढ़ने से इनकार कर दिया। बादशाह उसे कहने लगा, देखो मैं तुम्हें इतना कम अकल, बेवकूफ और नादान नहीं समझता था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इसके बाद की तहरीर को जाने बगैर, इसके बाद की तहरीर को पढ़े बगैर मैं ऐसे खत को फाड़ दूं? आगे पढ़ो तो सही, इसमें लिखा क्या है। और जिन दो बातों को लेकर तुमने इनकार किया और जिन दो बातों को लेकर तुमने एतराज किया, सुनो, अगर ये वाकई अल्लाह के रसूल है तो इनका हक बनता है कि अपना नाम पहले लिखें, मेरा नाम बाद में लिखें। अगर वाकई अल्लाह के रसूल है, इनका नाम पहले होना चाहिए। और दूसरा एतराज जो तुमने किया कि मेरे नाम के साथ साहिब रूम क्यों लिखा, तो सुनो, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। मैं साहिब रूम ही तो हूं, बिल्कुल हकीकत तो लिखी है, मैं रूम वाला हूं, मैं रूमियों का साथी हूं, रूम का मालिक नहीं हूं। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने आज ये कुर्सी मुझे दी है, कल इसी जगह पर कोई और भी आ सकता है, रूमियों पर कोई और भी मुसल्लत किया जा सकता है, रूमियों का हाकिम कोई और भी बन सकता है। तो साहिब रूम ये तो हकीकत पर मबनी बात है, तो इस बात पर उलझने की हाजत नहीं है। खत के अगले कलिमात क्या हैं उसे पढ़ो। बहरहाल गुफ्तगू यहीं से कुछ आगे बढ़ने लगी। बादशाह उन्हें समझाते हुए कहता है, रूमियों, मेरा ख्याल यह है, मेरा ज़हन ये कहता है कि ये खत लिखने वाली शख्सियत वही है जिसके बारे में अल्लाह ताला जल्ल जलालहू के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारत दी थी। कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया। पारा 28 सूरह सफ और सूरह सफ की आयत नंबर 6, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को जमा करके उनमें गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं। गुफ्तगू क्या है? ए बनी इसराइल, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराह, जो मेरे हाथ में तौरात है मैं उस तौरात की तस्दीक करने वाला हूं। सुनो, मेरे बाद एक रसूल जलवा फरमा होने वाले हैं जिनका नामे नामी इसमें गिरामी अहमद है। आज के इस इज्तिमा में मैं उस आने वाले रसूल की तुम्हें बिशारत दे रहा हूं। बादशाह ने इसी बात की तरफ इशारा किया, कहने लगा कि देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनकी बशारत दी थी ना, मुझे ये लगता है कि ये वही नबी है, उनकी जलवा फरमाई हो चुकी है। और वो नबी हमें इस चीज की दावत दे रहे हैं कि हम हाजिर हो जाएं, उनकी खिदमत में जाएं, कलिमा पढ़ें, मुसलमान हो जाएं और उनकी गुलामी का तोग अपनी गर्दन में डाल लें। मेरा जी चाहता है कि ये अगर वाकई अल्लाह के नबी हैं, मैं इनकी खिदमत में हाजिरी दूं और इनके वुजू का पानी जमीन पर ना गिरने दूं, बल्कि इसको अपने जिस्म पर डालकर अपनी मगफिरत का सामान करता चलो। ये कलिमात हैं बादशाह के, शाह रूम के, कैसर के। जब ये गुफ्तगू हुई, इसके बाद रूम के सरदार दरबार में मौजूद है, वो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ के कहते हैं बादशाह, अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो अरब में नबुव्वत और रिसालत को रखे। तुम्हें पता नहीं है अहले अरब की हालत क्या है, वो तो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अनपढ़ लोगों में, जाहिलों में अपने नबी को भेज दे, और नबी भी वो जो सय्यदुल अंबिया है, नबी भी वो जो आखिरुल अंबिया है, अफजलुल अंबिया है, अशरफुल अंबिया है, नबी भी वो जो सारे नबियों के नबी हैं। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु अनपढ़ों में, जाहिलों में अपने नबी को भेज दे? तुम्हें पता नहीं है हम अहले किताब हैं। जब हम अहले किताब हैं तो नबुव्वत हमारे घर में आनी चाहिए। यानी ये कलिमात बादशाह के सामने बयान किए जा रहे हैं, बादशाह को बताया जा रहा है, कैसर को बताया जा रहा है कि सुनो, हम अहले किताब हैं। अहले अरब वो तो अनपढ़ और जाहिल हैं, जाहिलों में अल्लाह नबी भेजेगा। नबी आया तो हम अहले किताब में आएगा। यूं इस अंदाज में गुफ्तगू शुरू हुई। कैसर कहने लगा, देखो, जब हमारे दरमियान अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की किताब इंजील मौजूद है, फैसला करने वाली है, हिदायत देने वाली है, हम इंजील मंगवा लेते हैं। इंजील मंगाकर खोलते, उस किताब में यकीनन उस आने वाले नबी के बारे में कई तरह की खबरें मौजूद हैं। हम उसे पकड़ते, लेते, पढ़ते और उस किताब से हिदायत हासिल करते हैं। देखते हैं ये किताब हमें उस नबी के बारे में क्या कहती है। तुम्हें पता है इनका एक अंदाज था ईसाइयों का कि जब को बादशाह के दौर में कोई अजीब वाकया पेश आता, बादशाह इंजील को खोलता, उस किताब से रहनुमाई हासिल करता। अगर उस किताब में उस वाकये के बारे में कोई बात दर्ज होती, उसको लिया जाता, उस पर अमल किया जाता, उसकी तशहीर की जाती। और अगर किताब उस बारे में कुछ भी नहीं कहती तो इनका एक अंदाज था कि एक मोहर तैयार की जाती, इंजील को मोहर बंद कर दिया जाता। जब एक बादशाह इंजील को मोहर बंद कर देता तो ये किस्सा ही गोया के खत्म हो जाता, दोबारा इस मौजू को छेड़ने की इजाजत किसी को नहीं होती थी। आज कैसर भी यही कह रहे हैं, हम इंजील मंगवाते, खोलते, देखते हैं इंजील इस बारे में हमें क्या कहती है। अगर इंजील ने कोई रहनुमाई की, हम उसकी रहनुमाई के मुताबिक चलेंगे, और अगर ये किताब इस बारे में हमें कुछ नहीं कहती, हम उस किताब को लेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, मोहर बंद कर देंगे। मोहर बंद हम अपने लफ्जों में ये समझ लें कि लॉक कर देंगे। जब ये लॉक लग जाएगा तो फिर एक मखसूस मुद्दत तक कोई भी दोबारा उस वाकये के बारे में किताब को खोलने का मजाज नहीं होता था। पहले भी कई मोहरें इंजील पर लगी हुई थी। बाद रवायात में जिक्र किया गया कि 12 मोहरें पहले लगी हुई थी। रावी का बयान है, शाहने रूम जब उनसे ये गुफ्तगू की गई और अंदाज यही था कि एक बादशाह किताब को खोलता, एक मखसूस मुद्दत तक किसी को उस बारे में वो किताब खोलने की इजाजत नहीं होती थी। ज़हन ये था, सोच ये थी, नजरिया ये था कि अगर दोबारा इस मुद्दत से पहले पहले किताब को खोल दिया गया, दीन में तगय्युर आ जाएगा, कौम तबाही के धाने पर जा खड़ी होगी। कैसर इसने कहा, ए रूमियों, मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने वाली किताब इंजील मौजूद है, हम उसे मंगाते, रहनुमाई लेते हैं। अगर इंजील अहले अरब में तशरीफ फरमा होने वाले मुद्दई नबुव्वत शख्स यानी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक में कुछ कहती है, इनकी तायीद करती है, इनकी नबुव्वत के बारे में कुछ तस्दीक करती है, हमें चाहिए कि हम जाकर इत्तिबा करें, कलिमा पढ़ें, मुसलमान हो जाएं, उनकी गुलामी को इख्तियार कर लें। और अगर किताब इस बारे में कुछ भी नहीं कहती, साकित है, सामित है, बिल्कुल खामोश है, तो हम एक मोहर और लगा देंगे। 12 मोहरें पहले लगी हुई हैं, 13वीं मोहर हो जाएगी। कैसर रूम ने इंजील को मंगवाया, इंजील लाई गई। इंजील के आने के बाद अब चूंकि वो पहले मोहर बंद हो चुकी थी, कई तरह की मोहरें लगी हुई थी, तो अब इसकी मोहरें खोलना शुरू की। एक मोहर जुदा की, दूसरी मोहर जुदा की, तीसरी मोहर जुदा की, यहां तक कि करते 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 11 मोहरें
الگ کر دی گئی. آخری مہر باقی ہے. جب یہ آخری مہر کھولنے کا وقت آیا تو دربار کی کیفیت ہی بدل گئی, ماحول ہی سارے کا سارا بدل گیا. یہاں جتنے بھی اعیان مملکت موجود تھے, رومیوں کے سردار بھی تھے, کئی ان کے راہب اور عبادت گزار بھی تھے, بیت المقدس کے بھی بعض حضرات یہاں موجود تھے جو وہاں کے دربان وغیرہ تھے. یہ جتنے بھی لوگ یہاں موجود تھے, انہوں نے وہ عجیب طرح کا بیہیو کیا, عجیب طرح کا انداز اختیار کیا. گریبان چاک کر دیے گئے. ضبط کے اور محل کے دربار کے آداب جتنے بھی تھے نا, وہ سارے کے سارے ایک طرف کیے گئے. ہر فرد وفور جذبات سے مغلوب ہو کر نہ معلوم کس کس طرح کی ادائیں ادا کر رہا ہے. ایک عجیب قسم کا شور برپا ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, ہر ایک اپنی ہانک رہا ہے, ہر ایک اپنی بولیاں بول رہا ہے. اور بادشاہ کے سامنے اس طرح کا منظر یہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا. کبھی کسی نے کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کی, کبھی کوئی اس طرح کا موضوع ہی نہیں چھیڑا. آداب دربار, آداب سلطنت, ان کو ملحوظ رکھا جاتا تھا. لیکن آج گریبان چاک ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, عجیب قسم کا شور و غوغا یہ دربار میں برپا ہے. کیسر آواز بلند کرنا چاہتا ہے, اس کی آواز بھی شور و غل میں گم ہو کر رہ جاتی. ہنگامہ خیز ماحول نے پریشان کر رکھا ہے. پھر کیسر کھڑا ہوا, پروقار انداز میں ان کو کہنے لگا, اے میرے مشیرو, اے میرے دانشورو, اے رومیو, اے میرے دربار میں آنے والوں, مجھے یہ تو بتاؤ یہ آج اضطراب کیسا ہے؟ یہ آج اس انداز میں تم نے شور و غوغا کیوں شروع کیا؟ انہوں نے جب اپنی اپنی بولیاں بول لی اور وہ جو شور شرابہ کرانا تھا وہ سب کچھ کرا چکے, چند رہنماؤں نے نمائندگی کرتے ہوئے کیسر سے کچھ اور نزدیک ہو کر ایک جواب لیا. کچھ اور نزدیک ہوئے, کیسر کو جواب دیا, کہنے لگے تم مہریں توڑ کر ایک بہت بڑا اقدام پہلے کر چکے ہو. تمہیں پتا ہے کہ جس دن یہ مہریں کھل گئی نا, خانوادہ کیسریت درہم برہم ہو جائے گا, سلطنت میں ایک طوفان برپا ہو جائے گا, دین میں تغیر آ جائے گا, تمہاری قوم اپنے دین سے پھر جائے گی. تم کیوں اس طرح کا کام کرتے ہو کہ تمہاری قوم ہٹ درمی کی طرف نکل جائے, تمہارا دین چھوڑ کر چلی جائے, ایک نئے دین کو اختیار کرنے کی طرف چلی جائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں کہ جب وہ کتاب سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہے, جب اس کی اپنی سوچ اور اپنا ذہن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے. کتاب کون سی؟ انجیل. کتاب اگر ہمارے آقا کی نبوت کی تصدیق کرتی ہے تو اس کتاب کو پڑھنے میں, اس کا جائزہ لینے میں, اس میں آنے والے نبی کے بارے میں جو علامتیں بیان کی گئی ان کے بارے میں پڑھنے میں حرج ہی کیا تھا. لیکن یہ سارا مجمع جان چکا تھا, سارے کے سارے مجمع کو خبر ہو چکی تھی کہ واقعی اللہ کے نبی, اللہ کے سچے نبی جلوہ فرما ہو چکے, تشریف فرما ہو چکے. اب اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ تعالی جل جلالہ کی مشیت. اللہ تعالی جس قوم میں چاہے, جس قبیلے میں چاہے, جس علاقے میں چاہے نبی بھیجے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اہل عرب میں جلوہ فرما کیا. جب اللہ تعالی نے اہل عرب میں اس نبی کو بھیج دیا, اعتراض کیسا, شکوہ کیسا, شور شرابہ کیسا؟ یہاں موریں کھلی ہیں صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے ہماری کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے. جب تمہاری اپنی کتاب سے رہنمائی لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر یہ شور ہوگا کیسا؟ کتاب کہے گی تو مان لینا, نہیں کہے گی تو نہ ماننا. بالکل واضح سی بات ہونے کے باوجود بھی وہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے, میں نہیں مانوں گا, مجھے نظر ہی نہیں آ رہا, کہاں ہے سورج مجھے بتاؤ. جب اس طرح کی کیفیت میں بندہ آ جائے تو آپ بتائیے کون مطمئن کرے گا, کون اس کو سمجھائے گا کہ سورج کس طرف. بہرحال جب یہ کہا گیا نا, دیکھو خانوادہ کیسریت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, تمہاری قوم کے دین میں تغیر آ جائے گا,
कैसर कहने लगा, तुम लोग खामखाई इतने जज्बाती हो रहे हो। मेरे ख्याल में मेरा ये अमल ये तो सिर्फ और सिर्फ इंजील से रहनुमाई हासिल करने के लिए। इंजील अगर हमें ये कहेगी कि ये अहले अरब में जो तशरीफ फरमा होने वाले मुद्दाई नबुव्वत शख्स हैं, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया, अगर इंजील कहेगी कि ये सच्चे नबी हैं, हम इनके खत की ताजीम करेंगे, इनके नुमाइंदे की ताजीम करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लोग जब ये सारी बात यहां दोबारा इस अंदाज में होती है ना, कहने लगे देखो कोई और अंदाज इख्तियार कर लो तो इंजील की तरफ ना कदम बढ़ाओ। वो अंदाज क्या हो? किसी ने ये कहा कि यहाँ मुख्तलिफ ताजिर आते हैं, अहले अरब के ताजिर भी आते हैं, हम यूं करते हैं कि अहले अरब के ताजिरों में से किसी को जमा कर लेते हैं, बुला लेते हैं, हम पास ताजिरों को जमा कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं और उनसे इस नबी के बारे में सवाल करते हैं। हकीकत सामने आ जाएगी। अगर वाकई वो अल्लाह के नबी हुए, हम इताअत की तरफ चले जाएंगे। तलाश शुरू हुई। जब ये तलाश का सिलसिला शुरू हुआ तो अरब नय्यात हजरात, इनको देखा जाए, लाया जाए, जो उस नबी को देख चुके हों, उनको जान चुके हों, उनकी सोहबत को पा चुके हों, उनके हालात से आगाही रखने वाले, उनको लाया जाए, उनसे किलो काल, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। बहरहाल तलाश शुरू की गई। वहां उस वक्त अबू सुफियान ये मौजूद थे, तिजारत का सामान वगैरह लेकर वहां पहुंचे हुए थे। इनको लाया गया, इनके साथ बाज दीगर हजरात को लाया गया, बादशाह के सामने लाकर खड़ा किया गया। बादशाह कहने लगा, ए अबू सुफियान, मुझे उस शख्स के हालात बताओ जो तुम्हारे दरमियान मबऊस हुए हैं और जो ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अबू सुफियान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू शुरू करते हैं। उस वक्त तक ये भी कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए। महबूब के महासिन, महबूब के औसाफ, महबूब के कमालात, इनको छुपा कर दीगर गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं। कहते हैं, शाह रूम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुकद्दस और मुहतरम ना समझना। ये गुफ्तगू है अबू सुफियान की। अभी तक ये कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुकद्दस और मुहतरम ना समझो। क्यों? इसलिए कि हम इनको साहिर और शायर कहते हैं। साहिर जादूगर और शायर शेर व शायरी करने वाले। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये तो काहिन है। कैसर ने जब ये सुना तो कहने लगा, देखो ये उनके रद में कोई दलील नहीं है। तुम आज इनको साहिर कह रहे हो, इनको शायर कह रहे हो, इनको काहिन कह रहे हो। पिछले अंबिया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं ना, तो पिछले अंबिया को भी यही कुछ कहा गया। किसी को साहिर कहा गया, किसी को शायर कहा गया, किसी को काहिन कहा गया। ये तो पिछले नबियों को भी कहा गया। जब ये बात हुई, अब इसके बाद अबू सुफियान ने दूसरी बात शुरू की। कहने लगा कि वो हम लोगों के दरमियान एक औसत दर्जे के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। कैसर कहने लगा, मैं पिछले अंबिया के हालात को भी जानता हूं। मैंने जिस नबी का भी तज़किरा पढ़ा ना, तकरीबन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम औसत दर्जे के खानदान, यानी दरमियानी दर्जे के खानदानों में तशरीफ फरमा हुए। ना बहुत ज्यादा अमीर, ना बहुत ज्यादा गरीब। जब मुझे तुम उनके हम नवाओं के बारे में और उनके साथियों के बारे में बताओ, वो कौन लोग हैं? अबू सुफियान ने जवाब दिया कि उनके पैरोकार जितने भी हमने देखे ना, वो सारे के सारे कमसिन, अभी चढ़ती जवानियों वाले, कोई बड़ी उम्र वाले, कबाइल के सरदार, बड़े बड़े लोग, अमीर कबीर लोग इनके साथ नहीं है। इनके साथ तो कमसिन छोटे जवान, कमसिन छोटी उम्र वाले, जोशीले, और वो लोग हैं जो अभी बहुत ज्यादा को मामला फहम नहीं है। कौम के सरदारों की बात करूं, कौम के अमीरों की बात करूं, अकवाम के रऊसा की बात करूं, तो उमरा ने बड़े बड़े अमीर लोग, कबाइल के सरदार, उनमें से कोई भी इनके साथ नहीं है। न इनके कामों में शरीक, न इनके हल्का असर में कोई मौजूद। ये जवाब सुनकर कैसर ने इल्मी वाकफियत की बिना पर अबू सुफियान को जो जवाब दिया वो ये था। कहने लगा, खुदा शाहिद है,
अंबिया के मुत्तबीईन, इनकी पैरवी करने वाले, और इनके मुआविनीन, इनकी मदद करने वाले हमेशा ऐसे लोग ही हुआ करते हैं। यानी आते ही बड़े बड़े उमारा साथ हो जाएं, रूसा साथ हो जाएं, कबाइल के सरदार साथ हो जाएं, ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। बाअसर लोग ये तो अपनी झूठी सरदारी के चक्कर में होते हैं। इनको तो अपने इक्तिदार की मौत नजर आ रही होती है कि अगर इनका सूरज चढ़ेगा, इनके सूरज के चढ़ने का मतलब यह है कि हमारे मानने वाले, हमारे जानने वाले, हमारी वाह करने वाले, हमें सलामियां पेश करने वाले वो रह जाएंगे, वो एक तरफ निकल जाएंगे, और ये सारे के सारे लोग वो तो इनके पीछे लग जाएंगे। यानी इन हजरात को अपनी झूठी सरदारी की फिक्र होती है और अपने इक्तिदार की, अपनी सरदारी की हवस और लालच और तमन्ना होती है। ये इनकी इत्तिबा करने की तरफ कहां जाएंगे। कैसर ने अबू सुफियान से इसके बाद अगला सवाल किया। मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, आप गौर करते चले जाइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक खत गया है, उस खत ने कैसी दरबार में जाकर हलचल मचा दी। मेरे आका के एक नामा गिरामी ने, एक मकतूबे गिरामी ने और एक मुबारक खत ने क्या माहौल वहां बनाया हुआ है। कैसर अगला सवाल करता है, कहता है मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हालात से वाकफियत का दावा करने वाले शख्स, मुझे ये बताओ, उनके रफीकों में से, उनके साथियों में से कोई एक साथी या उनकी पैरवी करने वालों में से कोई एक ऐसा है जिसने कलेमा पढ़ा हो, उनकी गुलामी का तोक अपने गले में डाला हो, उनकी गुलामी को इख्तियार किया हो और फिर इसके बाद मुनहरिफ हो गया हो। कलेमा पढ़ा, कलेमा पढ़ने के बाद मुर्तद हो गया हो। कलेमा पढ़ा, उनकी गुलामी को इख्तियार किया और उसके बाद उसने अपना दीन बदल लिया हो और उसकी जबान पर ये जुमले आए हों। मैंने करीब से देखा है, इनके साथ शबो रोज गुजारे, रात दिन इनके साथ उठने बैठने का सिलसिला हुआ, मुझे इनमें कुछ चीज नजर नहीं आई। इनमें ये खराबियां, इनके दीन में ये खराबियां, इनमें ये बुराइयां हैं, इनकी आदत इस तरह की हैं, इनके अकवाल इस तरह के हैं, इनके अफआल इस तरह के हैं। कोई ऐसा तुम्हारी नजर में है कि जिसने कलेमा पढ़ा हो, गुलामी को इख्तियार किया हो, उसके बाद दीन को छोड़ दिया हो और इनकी जात में, इनके पैगाम में, इनके कमालात में, इनके औसाफ में, इनके अकवाल में, इनके अफआल में या इस तरह की किसी चीज में उसने को खराबियां बयान की। जब ये सवाल किया गया, अबू सुफियान हैरत और इस्तेजाब के समंदर में गोता जन, इस सवाल का क्या जवाब दूं, इस बारे में क्या कहूं। कहने लगे, बादशाह, हकीकत यही है कि आज तक कोई एक भी ऐसा हमारी नजर में नहीं है कि जिसने इनकी गुलामी को इख्तियार किया हो, उसके बाद इनके दीन से मुनहरिफ हुआ हो, इनका कलेमा पढ़ा हो, बाद में मुर्तद हो गया हो, इनकी गुलामी को इख्तियार किया हो और इनके पैगाम में, इनकी जात में, इनके औसाफ में या किसी भी चीज में उसमें कोई नक्श निकाला हो कि नहीं जनाब, जहां तो ये खराबी है, इनमें तो ये बुराई है, इनमें तो ये ऐब है, इनकी जात तो इस तरह की है, तुम इनके बारे में इतने औसाफ बयान करते हो, हमें तो कोई चीज नजर ही नहीं आई। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने कलेमा पढ़ा हो, मुसलमान हुआ हो, इसके बाद इनके दिन से मुनहरिफ हो गया हो। जब ये बात हुई, इसके बाद कैसर ने मजीद एक सवाल किया। वो सवाल ये था, ये बताओ, इनके दीन को इख्तियार करने के मामले में लोगों की कैफियत क्या है, इनके दीन को इख्तियार करने के मामले में लोगों का रुझान क्या है, क्या इनके दीन में आने वालों की तादाद बढ़ रही है, एक जगह पे रुकी हुई है या क्या। अबू सुफियान कहने लगा, हम तो दिन ब दिन यही देख रहे हैं कि रोजाना इनकी तादाद बढ़ती चली जा रही, रोजाना, हर दिन इस्लाम की तरक्की का दिन है, हर दिन इनके गुलामों में इजाफे का दिन है, हर दिन कोई ना कोई इस तरह की खबर मिलती है, आज इसने कलमा पढ़ लिया, आज उसने कलमा पढ़ लिया, तुम्हें पता है फलां भी मुसलमान हो गया। हम तो रोजाना यही खबरें सुन रहे होते हैं। कैसर ने जब ये सुना, कहने लगा, तुमने उनके हालात बयान करके मेरी बसीरत में और ज्यादा इजाफा किया। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अन करीब वो शख्स
मेरी ममलुकत पर भी हाकिम होंगे और मेरे कब्जे में जितनी भी सल्तनत है ये सारी की सारी उनके जेर नगी होगी। जब ये बात हुई, इसके बाद कैसर अपने दरबारियों से मुखातब होता है, कहते हैं, ए रूम के लोगों, ए रूम के सरदारों, हकीकत पसंदी से काम लो, हमको उस शख्स की दावत कबूल कर लेनी चाहिए। मैंने अभी तक जितनी गुफ्तगू सुनी है ना, मेरा दिल ये कहता है कि जिस दीन की तरफ वो हमें बुला रहे हैं, हमें उस दीन को इख्तियार कर लेना चाहिए। इस दीन को इख्तियार करने में ही आफियत, हम बच जाएंगे, हमारी आने वाली नस्लें बच जाएंगी, हमारा मुल्क बच जाएगा, हमारी सल्तनत बच जाएगी। देखो मेरे सामने तारीख मौजूद है, जब भी किसी नबी ने किसी कौम की तरफ पैगाम भेजा, उस कौम ने अगर नबी की पैरवी की वो अमान पा गए, और अगर उस कौम ने उस नबी की पैरवी नहीं की तो वो कौम तबाह बर्बाद हुई है। ए रूमियों, तबाही से बच जाओ, हलाक होने से बच जाओ, अपनी सल्तनत की फिक्र करो। देखो अगर तुम उनकी इताअत कर लोगे, उनकी बात मान लोगे, तो इसमें तुम्हारी और तुम्हारे मुल्क की फलाह व बहबूद है। अबू सुफियान कहते हैं कि इस मौका पर मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो हकीकत से हट कर हो। जो भी सवाल किए गए मैंने उनके जवाब दिए। जब ये बात यहां तक पहुंची तो मेरे दिल में फौरन एक चीज आई। मैंने बादशाह को कहा, बादशाह तुम्हें एक अजीबो गरीब बात ना बताऊं? बादशाह कहते हैं, हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? अबू सुफियान कहते हैं कि इसके बाद मैंने उनको ये कहा कि कुछ वक्त पहले एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। वो वाकया ये था कि एक दिन सुबह सुबह हम सारे बेदार हुए, इनकी जबान पर यह था कि आज रात मैं मस्जिद हराम से चला, मस्जिद अक्सा में पहुंचा। हमारे मक्का मुकरमा की मस्जिद हराम से चले, बैतुल्लाह से चले, मस्जिद अक्सा में आए, और एक ही रात में थोड़े से हिस्से में इन्होंने ये सारे का सारा सफर तय कर लिया। ऐ बादशाह ये बताओ, ये बात अकल में आने वाली है? क्या अकल इस चीज को तस्लीम करती है? ये उनकी तरफ से ये हमें कहा गया। अबू सुफियान दिल ही दिल में खुश थे कि अब मआदल्लाह सुम्मा मआदल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस बात पर हिरकल बादशाह, कैसर रूम का बादशाह, वो बरंगेख्ता होगा और इस वाक़े को झुटलाएगा। ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब ये बात सारी पूरी हो गई, पूरी बात सुनने के बाद कबल इसके कि कैसर इस बारे में कुछ कहता, यहां बैतुल मुकद्दस के खुद्दाम में से एक साहिब मौजूद थे। वो आ गया है, कहने लगे, कैसर जिस रात की बात ये अरब मेहमान कर रहे हैं ना, मैं उस रात से वाकिफ हूं, और उसी रात के बारे में एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। कैसर हैरान हुआ। गुफ्तगू शुरू वहां से हुई, जवाब इधर से आ रहा है। बात तो सारी अबू सुफियान ने बयान की है, बात अबू सुफियान बयान कर रहा है, और उसके जवाब में बैतुल मुकद्दस का खादिम ये इसकी वजाहत करने के लिए खड़ा हुआ है। कैसर कहता है, बताओ क्या कहना चाहते हो? कहता है, बादशाह जिस रात की बात ये अरब मेहमान करता है ना, उस रात को बैतुल मुकद्दस के सारे दरवाजे में बंद करने के लिए चला। रोजाना रात का मामूल था, मैं दरवाजे बंद करके सोया करता था। जब मैंने दरवाजे बंद करना शुरू किए, दरवाजे बंद करते 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 जिस दरवाजे का जिक्र ये कर रहे हैं, मैं उस दरवाजे पे पहुंचा। दरवाजा बंद करने की कोशिश की, दरवाजा बंद नहीं हो सका। मैंने वहां जो दीगर खुद्दाम वगैरह थे उनको बुलाया, वो सारे आ गए। जब ये सारे पहुंचे ना, सब ने मिलजुल कर जोर लगाया, कोशिश की दरवाजा बंद करने के लिए, दरवाजा बंद नहीं हो सका। हम ये समझे कि शायद इस दरवाजे में कोई खराबी आ गई होगी, इस वजह से दरवाजा बंद नहीं हो रहा। तो बावजूद कोशिश जब दरवाजा बंद नहीं हो सका, ये सोच कर हम अपने अपने घरों में चले गए, इस दरवाजे में कोई खराबी आ गई है, सुबह का वक्त आएगा, हम बढ़ई को बुलाएंगे, वो आएगा, इस दरवाजे को दुरुस्त कर देगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। लेकिन बड़ा अजीब मुआजरा हुआ। जब सुबह के वक्त हम पहुंचते हैं,
दरवाजे की चौखट बिल्कुल दुरुस्त, किसी किस्म की कोई खराबी नहीं, और इस दरवाजे के साथ ही एक पत्थर में सुराख है, वहां सवारी के बंधने की अलामतें मौजूद हैं। जब सुबह हमने देखा ना, तो वो दरवाजा जो रात बावजूद कोशिश हम बंद नहीं कर सके थे, वो हल्की सी कोशिश के साथ ही बंद हो गया। गौर करने लगे, सोचने लगे, ये क्या, ये अलामत, ये अलामत, ये अलामत, ये सारी की सारी अलामतें ज़हन में घूमने लगी। फिर दिल ने तस्दीक की, हमारी किताबों में कुछ अलामतें इस तरह की जिक्र की गई हैं, और उनमें ये चीज बयान की गई है कि ये दरवाजा, अल्लाह के आखिरी नबी इस दरवाजे से जलवा फरमा होंगे, बैतुल मुकद्दस में आएंगे, रात का वक्त होगा, यहां उनकी सवारी बंधेगी, यहां अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की बंदगी बजा लाएंगे और रातों रात वापस चले जाएंगे। ऐ बादशाह, जानवर बंधने के निशान हमने देखे, दरवाजा बावजूद कोशिश बंद नहीं हुआ। इतने सारे लोगों ने मिलजुल कर कोशिश की, दरवाजा बंद नहीं हुआ। और जब दरवाजा बंद नहीं हुआ, अगले दिन आते हैं, चेक करते हैं, दरवाजा फौरन बंद हो जाता है। ये सारी की सारी निशानियां वो हैं कि जो बताती हैं कि अल्लाह के नबी आज की रात बैतुल मुकद्दस में जलवा फरमा हुए थे, अल्लाह की बंदगी बजा लाने के लिए। इस मुकद्दस इमारत में, इसके दरवाजे में कत्अन कोई नक्स नहीं। जब ये बयान खत्म हुआ, कैसर ने कुछ लम्हों के लिए तवक्कुफ किया, ठहर गया, सोचने लगा, और दोनों जानिब नजरें डालने के बाद कहते, ऐ रूम वालों, क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और क़यामत के दरमियान सिर्फ एक नबी हैं जो जलवा फरमा होंगे, हजरत ईसा, इनके बाद सिर्फ एक नबी आएंगे, और वो नबी उनकी बशारत जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चुके हैं। मैं तो बिला खौफे तरदीद कहता हूं, ये नबी जिनका खत हमारे पास आया, यही वो नबी ये मुबश्शिर है, यही वो खुशखबरियां देने वाले नबी हैं कि जिनकी बशारत अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चुके। रूमी सरदारों ने जब ये बादशाह की मुबल्लिगाना तकरीर सुनी, न सिर्फ ये कि इसे रद्द किया, बल्कि इंतहाई शोरो गोगा बर्पा करने लगे। इस सारी गुफ्तगू पर एक दफा फिर बरगेख्ता हुए, ऐसे कलिमात कह बैठे कि जिसके सुनने का कभी किसी रूमी बादशाह ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कैसर रूमियों की ये नफरत, बेजारी, बरहमी, ये सब कुछ देखकर वो सारे के सारे हालात को भांप गया, सारी की सारी कैफियत उसके सामने आ गई। अब उसने पैंतरा बदला और रूए सुखन को बदलते हुए कहने लगा, ए सल्तनत रूमिया के काबिल फर्जंद, ए सल्तनत रूमिया के काबिल फख्र फर्जंदो, वाकई मैंने तुम्हारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई, लेकिन सुनो, मैंने ये सारे का सारा इसलिए किया ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम अपने अकीदे और अपने नजरियात में कितने मुखलिस हो। मजहबी रिवायात की बुनियादें तुम्हारे अंदर किस कदर गहरी है, मैं तो ये जानने के लिए कर रहा था। यानी दिल तस्लीम कर चुका। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत रोजे रोशन की तरह आया हो चुकी, सारी की सारी हकीकत खुलकर बादशाह के सामने आ गई। लेकिन बादशाह किस शातिराना अंदाज में, मक्कार भरे अंदाज में अब अपने आप को पैंतरा बदलते हुए ये कहने लगा कि नहीं जनाब, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था, मैं तो तुम्हें चेक कर रहा था, मैं तो ये जानना चाहता था कि तुम किस कैफियत में खड़े हो, तुम्हारे मजहबी अकायद किस तरह के हैं, तुम अपनी रवायात में किस कदर मजबूत हो। अब बादशाह ने ये कहकर किस्सा खत्म किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चरण के नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम यकीनन अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु के नबी हैं, और नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कदर अज़मत व शान वाले नबी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, कायनात की कोई शय ऐसी नहीं जो ये ना जानती हो कि मैं अल्लाह का रसूल। जर्रा जर्रा जानता है, हर खुश को तर जानता है, बहरो बर जानते हैं, जिन्नो बशर जानते हैं
कायनात की हर शैन को जानती है, पहचानती है, मानती है, ये अल्लाह के नबी। लेकिन हर धर्मी का इलाज कोई नहीं है, जिद और अनानियत का इलाज कोई नहीं। बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अय्यां सब कुछ वाजे मौजूद है, लेकिन ना मानने वाले नहीं माने। चांद दो टुकड़े होते देखा, सूरज को पलटते देखा, सरकार की मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते देखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की गवाही देने के लिए कभी गो हाजिर हो रही है, कभी हरन आ रहा है, कभी ऊंट आ रहा है, कभी कोई जानवर आ रहा है, कभी दरख्त जड़ों समेत हरकत करता हुआ आ रहा है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी ना मानने वाले नहीं माने। और जिनको अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने दौलत ईमान अता करने के लिए मुंतखब किया, उनकी जबान पर तो यही था कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मानने वाले वो तो सरकार का चेहरा देखकर, जलवा देखते कलमा पढ़ के मुसलमान हो। कितने सहाबा इस तरह के नबुव्वत की दलील तलब नहीं की। आप अल्लाह के नबी हैं, कुछ करके दिखाइए। आप अल्लाह के नबी हैं, को मौजज़ा दिखाएं, को कमाल दिखाएं, कोई चीज हमारे सामने रखें, हमें पता तो चलना चाहिए कि आप वाकई अल्लाह के नबी हैं। कितने इस तरह के सिर्फ महबूब का चेहरा देखा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। कितने इस तरह के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुरान की तिलावत सुनी, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। जिनको अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने महबूब की रफाकत के लिए, महबूब की कुर्बत के लिए, अपने प्यारे हबीब की सोहबत के लिए मुंतखब फरमा लिया, वो आते गए, दीवाना वार कुर्बान होते चले गए। और जिसके मुकद्दर में ईमान नहीं था, वो बड़े बड़े मौजज़ात देखकर भी मुनहरिफ हो गए। हम अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की बारगाह में दस्त बदुआ है, रब्बे करीम हमें मानने वालों में रखे। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर इस्तिकामत दे, सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुलामी पर इस्तिकामत अता फरमाए। यकीन जानिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो बात जिक्र फरमाई, उसी पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। इस मुर्दा दिल को मुजदा हयात अबद का दो, इस मुर्दा दिल को मुजदा हयात अबद का दूं, ताबो तवाने जाने मसीहा कहूं तुझे। ने इस मुर्दा दिल को हमेशा की जिंदगी का राज दे दूं। वो हमेशा की जिंदगी का राज क्या है? सरकार के साथ रिश्ता मजबूत कर लें। अल्लाह ताला नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रुखे रोशन का सदका हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तुम्हारे लिए बदल में है जा, तुम्हारे लिए हमारे जहां तुम्हारे